आइए और अच्छी तरह से हम अपने से जुड़ जाएं। 2 बार श्वास से प्रश्वास के साथ इतनी अच्छी तरह से अंगड़ाई लीजिए, पैर की अंगुली के नाखून से सिर तक प्रत्येक बिंदु से हम जुड़ जाएं। Try to connect ourselves deeply with the visible self. Practice double breathing followed by joyful stretching and relaxation. Now again we are ready to listen and understand through practice. When you are listening, if you are listening, you are not practicing while listening, it will be very difficult to listen and practice. Therefore, when you are going to listen, you are ready to listen what I am going to say something. During this, feel head to toes, feel your breath, accept a head to toes, is presence of complete unit of knowledge, power, peace, bliss, immortality. And within this, you will find all things. Origin of the universe. What is the science of origin of universe? Who created this universe? How long it will exist? And what is the time of dissolving this universe? All knowledge exists within head to toes perception, what you feel. In short, within this, there exists all things. Have this concept and start increasing awareness to feel head to toes, then start listening. अभी हम स्क्रिप्चर सुनने जा रहे हैं। स्क्रिप्चर सुनिए और प्रैक्टिस ना करिए तो समझ में नहीं आता है। तो सुनना भी एक प्रैक्टिस है। इसको सुन रहे हूं तो उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस क्या करेंगे? सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभव करते रहिए। सिर कहाँ है, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की उंगली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। और जो अनुभव हो उस अनुभूति में सब कुछ है ये मान के चलिए। अगर नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिस गलत है। सब कुछ है इसका अर्थ क्या है? हम ज्ञान चाहते हैं। ब्रह्मांड का ओरिजिन कब हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, हम बनाना चाहते हैं। सिर से पैर की उंगली तक इसको किसने बनाया, हम बनाना चाहते हैं। इसको जब तक चाहे हम रख सके ये ज्ञान चाहते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सके ये भी ज्ञान चाहते हैं। और जब आवश्यकता न रहे तो इसको हम डिसअपियर कर दे ये भी चाहते हैं। तो सिर से लेकर पैर की उंगली तक हम जो अनुभूति कर रहे हैं इसी में संपूर्ण ज्ञान है। जो कुछ आप कल्पना करते वो भी इसी मिलेगा। कहते राक्षस क्या होते हैं, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। आपने में एकाग्र हुई तो पता चलेगा राक्षस होते क्या है, देवी देवता क्या होते हैं, अवतार क्या होते हैं, परब्रह्म क्या है, सब चीज इसी अनुभूति मिलेगी। तो अपने अनुभूति में बने रहिए और फिर सुनते रहिए। Let us, this is very important. All people are trying their best to find out origin of the universe. And they are trying to know who is the creator of the universe. Trying to know how to preserve it till we need. Trying to know how to make a change in this. This is a very important desire of all human beings. But try to remember this within head to toes, whatever we feel, heaviness, lightness, comfort, discomfort, heat and cold, pain and pleasure. Within perception, what we feel, there exists all things. To learn science of creation,
to understand what is the origin of universe, to understand how to maintain its existence, to understand how to make a change in this. Everything exists within. I want to know prophets, where is Jesus Christ, where is Buddha, where is Mahavir Swami, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, Sant Ravidas. We want to talk with the Lord Krishna, Bhagwan Ram, and everything is possible. You will find their presence within perception of head to toe. It means your head to toe perception is the most important thing. Then while listening, try to experience presence of head to toes more and more. Now you listen. अभी हम लोग समझ रहे थे कि मानव का लक्ष्य है हम लोग नवरात्रि के बारे में समझ रहे हैं। कितने वर्षों से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन मानव का कष्ट दूर नहीं हुआ। क्योंकि नवरात्रि का पर्व जब मनाते बच्चों का खेल की तरह है। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, पतंग है, कार चलाते हैं और दुनिया भर के जो खिलौने हैं खेलते हैं, तो वो रियलिटी नहीं है। ऐसे जो भी नवरात्रि पूजा हो रही है वो केवल बच्चों के खेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे का खेल आवश्यक है, इस रिचुअल के रूप में जो पूजा हो रही है ये भी आवश्यक है। अब समय आ गया इसको सही जानने के लिए। सही जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि हम सबका लक्ष्य क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। इसमें अगर एक समझ गए तो सभी समझ जाएंगे। यही तो बहुत अच्छी बात है। क्रिया योग ध्यान में जब आप प्रवेश करते हैं, जिसमें क्रिया योग ध्यान और हमारा अस्तित्व मिलके एक हो जाता है, ये पता चलता सिर से पैर की उंगली तक क्रिया योग तत्व ही है। ये उस समय ज्ञान होता है। अगर हम एक समझ गए धर्म क्या है तो चारों समझ में आ गया। अर्थ क्या है या काम या मोक्ष, किसी एक को समझिए, चारों समझ में आ जाते हैं। तभी हम लोग धर्म समझ रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर बड़ी झगड़ा है। धर्म के नाम पर मानव बट गया है। स्वामी तीर्थगिरी किताब बढ़िया लिखे हैं और सबसे अवतार के अवतार, महाअवतार, उनके संरक्षण में, उनके ज्ञान के आभामंडल में स्वामी तीर्थगिरी क्या लिखे हैं और अप्रूव्ड हुआ है, एडिट हुआ है। महाअवतार बाबा ने मुहर लगा दी है। क्योंकि महाअवतार बाबा ने कहा था कि जिस समय इसको लिख करके ये पुस्तक समाप्त होगी हम फिर आएंगे मिलने। जिस दिन लिख करके समाप्ति हुई उसी दिन महाअवतार बाबा जी फिर प्रकट हो गए स्वामी तीर्थगिरी के पास। इसका अर्थ सिद्ध हो गया कि इस पर मुहर लग गई है कि सही है। तो क्या लिखा है? There is an essential unity in all religion. Essential unity की क्या मतलब होता है? अगर ये मान लीजिए कि हम कहते हैं ये हिंदू धर्म है, ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म है, फिर कहते हैं क्रिश्चियन है, ऐसे और अनेक हैं, तो हम तीन ही ले रहे हैं। तो यूनिटी का मतलब क्या कि अगर हम हिंदू हैं तो हम क्रिश्चियन भी हैं उसी समय। अगर हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम भी हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो हिंदू भी हैं, हम क्रिश्चियन भी हैं। ये जो दूरी है ये D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर 0 दूरी है ही नहीं। कि महाअवतार बाबा की मुहर लगी इस ज्ञान पर। तब इसमें झगड़ा है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या ईसाई हैं कि सिख हैं कि बौद्ध हैं कि जैन हैं। इसी अज्ञानता से मुक्त होने के लिए क्रिया योग विज्ञान है।
try to understand that if you understand this, what is dharma, artha, kama, moksha, you can write in English, dharma, artha, kama, and moksha. If you know one, you will know all. You know about dharma or arth or kam or moksha, you will know all. And what is this? This is the aim of human life. In the name of religion, so much fight. Humanity is divided. We are one. Aim of life, what Lord Krishna said, to experience a state of yoga. Yoga means if there is distance between me and you, if I am Hindu or I am Muslim or I am Christian, in the main thing you can write, I am Buddhist or Jain or Sikh, whatever. Therefore, what is the important point? Aim of human life is to experience eternal unity. If I am Hindu, then I must say I am Muslim also. I am Christian also. If I am Muslim, then I have to feel I am Hindu and I am Christian. If I am Christian, I have to feel I am Hindu and Muslim. And this is truth because this scripture is stamped, is accepted, edited, approved by Mahatma Babaji. That this is the fight among human beings. Now we are going to understand again what is the dharma. Because dharma means also faith. Humanity divided on the basis of faith. That is very dangerous. This division is called greatest poison. Division is called the greatest problem in our life. We want to liberate ourselves from this concept of division. How to do that? Let us understand again what is dharma. जो एक डिवीजन है कि हम लोग जो फील करते हैं कि अलग अलग हैं, फेथ के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये बहुत बड़ा विष है, जहर है ये। इससे तो बीमार होते हैं। बीमारी कारण बैक्टीरिया वायरस नहीं है। बीमारी कारण है कि जब हम कहते हैं हिंदू हैं, उसमें हम मानते हैं कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं। हम हिंदू हैं तो हम क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, हम सब कुछ हैं। ये नहीं मानते तो क्या होता? वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, digestive problem, endocrine system problem, bone problem, all problem because of this distance we experience in the name of faith. जो फेथ के नाम पर, धर्म के नाम पर हम समझते हैं कि अलग अलग हैं, यही तो सारी बीमारी कारण। बीमारी कारण बैक्टीरिया वायरस नहीं है। बीमारी कारण है जब हिंदू हैं तो हम नहीं मानते कि हम मुस्लिम भी हैं, हम क्रिश्चियन भी हैं, हम बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, हम मतलब सब हम फॉलो करते हैं। इसी हिंदू धर्म में सभी धर्म हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो इसका अर्थ ये क्या है कि हमारे अंदर एक एटमॉस्फेयर है, हमारे अंदर एक वातावरण है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिस चीज के होने से बैक्टीरिया वायरस बढ़ते हैं, जिस चीज के होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो हमको देखें ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका, कनाडा में, हमको तो कम से कम हजारों बार तो हम गिरे होंगे। क्यों गिर गए? गलती करते थे। कौन सी गलती? ध्यान किए हैं, अचानक आनंद आया और भूल गए कि अभी पूरे बॉडी को एक्टिवेट करके तब चले। बिना एक्टिवेट किए चलना शुरू किए, गिर गए। कहीं पहाड़ से गिरे हैं, कहीं गड्ढे में गिरे हैं, कहीं यहाँ गिरे हैं, वहां गिरे हैं, फिर इतना गिरे कि फ्रैक्चर भी हो गया। उसी फ्रैक्चर में ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया वाले जानते हैं कितना पैर फूला हुआ था।
उसी फ्रैक्चर में जबलपुर गए थे, महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही थी। उसमें लोगों ने हमें कहा था, मैंने वादा किया था कि आएंगे। उसी फ्रैक्चर में कनाडा गए, यूएस गए, कितना तकलीफ थी फ्रैक्चर में, लेकिन मैंने ना तो पेन किलर लिया ना कास्टिंग कराया। चलने में लगता था प्राण निकल जाएंगे। जहां मैं रहता हूँ सीढ़ी पर चढ़ने पर चक्कर आता था, 3 बार बैठ के जाते थे। वही मैं हूं, नॉन स्टॉप चढ़ता हूं। अब पेन नहीं है। ये कैसे सब हीलिंग हुआ, कैसे ठीक हुआ? कोई दवा नहीं खाए थे, कोई पेन किलर नहीं खाए थे, एंटीबायोटिक्स नहीं खाए थे। हाँ, एक्सरे लिए थे, डॉक्टर कहा था आपकी हड्डियां खराब हो गई हैं, हड्डियां कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। हमने देखा, लग रहा था जैसे टूटी हुई लकड़ी, जैसे लकड़ी के दीमक खा लिए हो। हमने कहा गलत है ये, उसको किनारे रख दिए, वही हड्डी तो है। और घटना कई वर्ष पहले की है, वर्षों पहले की है। इसे याद रखिए, अगर आप पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, आप सोच करके कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्ध भी, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, हम सिख भी हैं, हम कबीर साहब के भी फॉलोअर हैं, संत रविदास के कहने से नहीं होता है। अपने देश में तो है, सबसे पूछिए, हम जातिवाद नहीं मानते हैं, सभी मानते हैं। सभी जातिवाद मानते हो, कहते हम नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज, सभी कहते हैं कि ईश्वर में भक्ति है, पता ही नहीं कि ईश्वर है क्या, तो भक्ति कैसे करेंगे आप? तो इसे अच्छी तरह से याद रखिए, जो अगर हमको अभाव से मुक्ति पाना है, गरीबी भी अभाव है, कमजोरी है तो शक्ति का अभाव है, चिंता है। चिंता कब होती है? जब अज्ञानता हो, हम जो चीज चाहे ना मिले तो चिंता होती है। तो जितने तरह के अभाव हैं वो सारे अभाव मिट जाते हैं। केवल ये कहने से नहीं कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं हिंदू भी हूं और मैं क्रिश्चियन भी हूं और मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। ये मुट्ठी बांधने से नहीं होता है। लाड़ी महाशय की तरह अनुभव करें कि क्रिया ही भगवान का रूप है। हम गॉस्पेल पढ़ना चाहते हैं ना, वेद, वेद कहाँ है? वेद लेके पढ़ने से वेद नहीं आता। जितने लोग वेद पढ़ते खूब घृणा करते हैं, जो वेद पढ़ते हैं औरों से इतना घृणा करते हैं कि और कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। लाड़ी माँ से क्या कहते हैं? क्रिया योग का अभ्यास ही वेद पाठ है। और क्या कहते हैं? अगर क्रिया का अभ्यास करते करते हम क्रिया योग से इतना जुड़ जाएं, हमें उसकी बिना दूरी खत्म हो जाए, संपूर्ण अज्ञानता मुक्त हो जाती है, फिर पता चलता है हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर इतने विनम्र हो जाते हैं जैसे लाड़ी माँ से विनम्र थे। ज्ञान के अवतार, जिनके शिष्य स्वामी तीसरे गिरी ज्ञानावतार, जिनका आशीर्वाद योगानंद को मिला, जो परमहंस से योगानंद हुए, जो पल भर में कुछ भी करके दिखाने में सक्षम, विनम्रता के प्रतिमूर्त सामान्य लोगों की तरह रहते थे। अपने भरण पोषण के लिए नौकरी करते थे, उसकी पेंशन लिए, और पैसा कम होता था तो ट्यूशन पढ़ाते थे। तो जो हम धर्म के नाम पर भिक्षाटन करते हैं, काम न करके कहते हैं कि हम तो घर छोड़ दिए, सन्यासी हो गए, हमके काम से मतलब नहीं है, वो सब अपने को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। मैं बाहर गया था, मैं 3 बजे आया रात्रि में। मैं देखा जैसे मैं आया, लोग ध्यान करने के लिए तैयार थे। खुश हो गया देखकर मैं। जैसे अंदर घुसा, इस दूसरे फ्लोर पर दिव्यांशा जी मिली। हम कहे अभी 3 बजे उठ गई? हाँ गुरु जी, पहले उठ गए थे, जाके सो, नहीं अब रिचार्जिंग करेंगे। जब 3 बजे आए, देखा सब लोग तो ध्यान मगन होने जा रहे हैं। कितनी ये सुख की बात है, कितनी सुखद बात है। हमारी पृथ्वी कितनी शांति मिलेगी इन लोगों की वजह से।
तो इसे आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करते हैं, बस क्रिया योग करते जाइए। जितनी व्याख्याएं बताते हैं ये सब आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। इसको सुन लेने से, पढ़ लेने से, याद कर लेने से आपको आंशिक लाभ होगा, ज्यादा नहीं। Try to understand that how nice the fellowship we are having it. Yesterday I went outside, some important program was there. I returned back morning at 3 a.m. Then I saw all people were ready to practice. I became so happy to see. When I entered into and just going up the top floor, in middle floor, I met Divyansa. He was standing outside door. Now, what happens? You are not sleeping? Or just I got up half an hour before. Go and sleep. She tell, no, I am going to do recharging. See this young age, she doing recharging. She, sister, she all, they are angels. If they are ready to practice at 3 in the morning, though I am not here. If I am here, they are practicing, all right. If I am not here, they practice more. Therefore, you are living here with the one of the most important fellowship. Now, what I want to say clearly, try to understand what is dharma. When you will understand what is dharma and practice dharma, what you listen, then you will say, no, I am not Muslim. I am not Hindu. I am not Christian. But what I am the Christian and Sanatana Dharma according to Holy Science. In the Holy Science, if I say I practice Sanatana Dharma or Christianity, immediately I will feel I am Buddhist also, I am Jain, I follow Kabir Sahib Ji, Guru Nanak Dev Ji, I follow this, everybody. All prophets are followers and line. Therefore, what is written in Holy Science, it is approved by Mahavatar Babaji. In this book, it demonstrated Christianity and Sanatana Dharma, both are one, not two. It means if I practice Sanatana Dharma, then I am Christian. If I practice Christianity according to Holy Science, then I am practicing Sanatana Dharma. If I am real Christian, then I will experience I am Bodh, I am Jain, I am follower of Kabir Sahib Ji, Guru Nanak Dev Ji, I am follower of Sant Ravidas Ji, I am follower of all prophets of all ages and line. अच्छी तरह से आइए, अब धर्म क्या है आपको समझाना चाहते हैं। Dharma in English we call it a religion. First I am going to tell in English. Why English? Because here English nor is having less population. This is called the principle of peace and joy. If less number of people are here who are knowing only English, not Hindi and other languages, then I have to explain first in English. Then what is the meaning of religion? Religion is a word which is derived from the Latin religare. Religare means any process which brings unity. If I am able to bind myself to you and inseparable, that is called I practice religare. It means religion means if you are practicing religion, then you are practicing how to realize unity with all. Then I will not say you are not mine or I am not yours. Among human beings, but we will say we are fully connected, having no space, no distance, with all animal kingdom, plant kingdom, atomic kingdom, energy kingdom. Each and every energy waves exist in the cosmos is fully connected to me, and I am connected to you. You are connected to me. All atom molecules, all bacteria, viruses exist in the cosmos. All are connected to me, connected to you, and we are connected to each other. That is called the meaning of religion. If I practice religion, if I say my religion is different, yours is different, that is completely false. That will create an atmosphere which will facilitate to experience this dream. What kind of dream? I have pharyngitis.
Another day, I cannot walk, I have pain. Oh, you have pain? You have pain more than me. How I walk, you can't understand. Suppose there is a broken ligaments, or tendons, or muscles, anything. How to make it new? When it tends to relax. Each wave of tension relaxation is like a thread of life force. Suppose that you have pain in the knee joint. Then what you want? Other than knee joint, wherever many joints are there, if they are very strong, they will support knee joint. How to make all knee joints stronger? When it tends to relax, or when you are walking, during walking, what you feel? Nails and toes and feet and calf muscles and thighs and hips, all points of the back, abdomen and chest, arms, neck and face. Why the pain? Try to walk in such a way that you must feel pain which you can enjoy. If I have pain in the right knee joint, for example, right knee joint, then I have to walk in such a way that right knee joint should give me the comfortable, joyful pain. And other part, I have to practice tension relaxation more and more. In due course of time, you will find that right knee joint is repaired. This is the way how I repaired myself. I have fracture in big toes and 2 fingers and ankle joint and here and there, so many places. But everything just now healed. Therefore, do it like this. Suppose that you have problem in the hip joint, right hip joint. Then what you have to do? You have to take some stick, walk in such a way, or with the walker, that you should have comfortable pain in the hip joint, which you can enjoy. Other part you feel tense, relaxed when you are walking, or lie down or sit or stand. Practice tension, relaxation, discharging technique everywhere on each and every part with this thought. Each unit of tension relaxation within there exists all in all. All in all means knowledge of origin of universe. Who created universe? Who am I? Who are you? How long this universe is going to exist? Is it going to exist all the time or it will dissolve? Complete knowledge you will get when you are walking. Within each perception, within each unit of change what you feel, that is filled by all knowledge. What is most important work? To experience all various changes during walking. When you are in lying position, taking turn right, left, from lying position you are sitting, from sitting you are standing, you are walking. Try to do all activities so that you must feel joyful changes. If any part is injured, have full awareness to move that part up to the extent which you appreciate. And other parts, do tension relaxation again and again as you do in recharging. You can learn in lying position, sitting position, standing position, working position, whatever. Therefore, what is our dharma? Dharma means, what is religion? What is religion? I have to bind myself with what? Kriya Yoga meditation. I have to bind myself to read holy science. I have to bind myself to read autobiography of Yogi. I have to bind myself to create an atmosphere that we will criticize no one. We will never believe that there is a distance among the people. We are going to accept there is no distance, no space among all human beings and animal kingdom, plant kingdom, atomic kingdom, energy kingdom. Space is zero. Just try to practice this one paragraph of scripture. You will find you will be healed and you will get everything what you need to realize that you are immortal. You will realize there is no birth, there is no death. You will get all those things which bring this realization that you are immortal. Now I am going to tell in Hindi. देखिए अब धर्म के बारे में सुनना है, इसको अनगिनत तरीके से बताया जा सकता है. If I try to speak about religion,
I can take the whole life. It's still never ending topic. But I am concluding it. धर्म के बारे में हम पूरे जन्म बताएं, खत्म नहीं होगा ये। लेकिन तब भी जैसे हम कंक्लूड करते हैं, धर्म क्या है? धर्म है जो जोड़ता है। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात जो हमें तोड़ता है, उसको स्वीकार न करिए। पता चला हमारे आपके बीच में किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुनने से हमारे आपके बीच में दूरी बढ़ गई, उस बात को आप गार्बेज में डाल दीजिए, उसको हटा दीजिए, उस बात को लीजिए ही मत। कोई मन में कल्पना आती है आपके विषय में, आप ठीक आदमी नहीं है, इस विचार को आप कूड़ेदान में डाल दीजिए। लेकिन होता नहीं है। अभी कल हमसे आपसे झगड़ा हुई, मारपीट तक हो गई, एक घुसा मैं मारा, एक घुसा आप मारे, हमारे यहां अभी तक दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, आपका उंगली में दर्द हो रहा है, आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे को प्रेम करेंगे हम? तो जो हम कह रहे हैं ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले अपने से जुड़िए। आप बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों पैर कहाँ है उससे जुड़िए। पैर के नाखून से लेके कमर तक, कमर से लेके सिर तक, एक एक जगह पर एकाग्रता बढ़ा के उससे जुड़े रहिए। पता चला पसीना आ रहा है, अरे बड़ा अच्छा, उससे जुड़िए। पसीना चला गया, उससे भी जुड़िए। हवा चल रही है, हवा बंद हो गई, गर्मी लग रही है, जाड़ा लग रही है, जितना गर्मी और जाड़ा लगती है वो बाधक नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आग के पास बैठ करके आप तपन वाली गर्मी लीजिए, हम नहीं कह रहे बर्फ पर बैठ करके ठंडक लीजिए। जो 6 ऋतुएं हैं भारतवर्ष में, उनसे जुड़िए। तो सिर से पैर की उंगली तक पहले अपने से जुड़ना सीखिए। श्वास भूल ही जाते हैं आप, श्वास को हर पल याद रखिए। श्वास है क्या? अरे श्वास तो अनुभव नहीं हो रहा, तब क्या करें? अरे श्वास ही इकट्ठा होकर के सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रहा है। पैरों में एकाग्रता बढ़ाना, श्वास में एकाग्रता बढ़ाए। जैसे समुद्र की लहर और समुद्र, ढेर सारी लहरें इकट्ठा होकर के समुद्र बन गई, ऐसे अनगिनत श्वास की संख्या इकट्ठा होकर के सिर से पैर की उंगली तक ये बन गया। तो आप हाथ अनुभव करते हैं, पैर, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, कड़ापन, ढीलापन, इसे अनुभव करते जाइए। कुछ ये भी अनुभव होगा कि सीना फूल रहा है, पिचक रहा है, ये श्वास की अनुभूति हो रही है। नाड़ी की गति, श्वास की अनुभूति, नाक से कोई चीज जाती आती है, श्वास की अनुभूति। इस तरह से अपने से जुड़ना सीखिए। और अपने से जुड़ने के बाद जो अपनी अनुभूति है, उसी में सब कुछ मिलेगा आपको, जिसको मिलने से पता चलता कि हम अमर हैं। न हमारा कभी जन्म हुआ था, न मृत्यु हुआ था, न जन्म हम लेंगे, न हम मरेंगे, हम तो अमर रहेंगे। इसी गीत को, इसी सिद्धांत को, क्रियायोग के इसी पाठ को पढ़ाने के लिए परमहंस योगानंद बेचैन थे। इसे महासमाधि के ठीक पहले क्या कहते हैं? मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील्ड। जैसे ये मृत्यु को उन्होंने अग्नि तत्व को मां माना है। परमहंस योगानंद सबको मां मान लेते थे। हवा भी मां, पानी भी मां, आसमान भी मां, पृथ्वी भी मां, भगवान भी मां। भगवान को मां के रूप में मानते थे, क्योंकि वास्तव में जब देखिए मां, तो मां एक ऐसी जो सारी गलती माफ कर देती है। अगर पिता भी मां की तरह हो जाए तो क्या बात है। अगर भाई बहन परिवार के सभी लोग मां की तरह हो जाए, अरे वाह, कहना क्या। परमहंस योगानंद की कविता, मॉर्टल फायर्स मैरिज हर होम्स, हर मीन्स फायर। फायर जो मां है, अगर अपने घर को, खेत खलिहानों को जला के राख कर दें, मॉर्टल फायर्स, वो फायर, वो अग्नि जो कहती है कि मृत्यु है ये, देखो मैंने जला के राख कर दिया, खेत खलिहान को, इस शरीर को जला के राख कर दिया, घर जला दिया, सब खत्म, सब मर गए।
तब भी योगानंद क्या कहते हैं, एट टू स्लीप ऑन हर ऐसे, तो माँ अग्नि जो जला दी उसी राख पर बैठ करके हम वही पाठ पढ़ाने के लिए अमरता का, ओ इंडिया आई विल बी देयर। परमहंस योगानंद just before entering to Mahasamadhi, he taught throughout life there is no birth, there is no death. Same teaching was given by Jesus Christ, by Buddha, by Ram and Krishna, by all prophets of all ages and line. Paramahansa Yogananda gave this teaching 32 years in North America and other places. But people were not understanding. Then he decided that when India will understand, other will understand in better way. Therefore, before entering into Mahasamadhi, what Paramahansa Yogananda just wished, what he prophesied, that, O India, I will be there. For what? To teach there is no birth, there is no death. To teach immortality alone exists. Then what was the poetry? Paramahansa Yogananda used to accept all creation as a mother. Sky mother, fire mother, air mother, earth mother, God mother. Because you feel that mother is closer than anyone, because mother used to feel the baby in the body. But without having any baby birth, you can be mother. Like Paramahansa is mother of all, he never go under the delivery. Paramahansa never go under the marriage phenomena. Jesus Christ never went under marriage phenomena. How he spent, he was mother of all. Therefore, remember, this is very important. Mortal fires may raise all her homes and golden paddy field. Paramahansa Yogananda is accepting mortal fire. Fire is itself mortal. Today fire is there, tomorrow fire is gone. Oh, you are fire. Oh, you are mortal. All right. But mortal fires is speaking, telling that all death exists. You see, I am burning homes and houses and paddy fields. This nice golden paddy field in Bengal. You see, I am going to burn them. I am going to transform them into ashes. What Paramahansa Yogananda is saying? To sleep on ashes and dream immortality, O India, I will be there. Because all teaching is dream. What I am teaching, this is dream. What is realization? When you feel head to toe, within each and every perception, accept all exist, complete knowledge, power, peace, bliss, everything. That is only reality. The Paramahansa Yogananda decided, I have to go India. I have to take birth in India to teach this science of immortality. When India will learn science of immortality, the world will be in better place. Therefore, what you are learning, practice dharma means remain united. Dharma means religion, which bind you. Try to bind yourself with your leg. Feel where are both legs, where are both arms. Each and every part of head to toes, try to feel it more and more. Each and every perception you feel, within there exists all in all. Mahavattar Babaji, Yevatar Lahiri Mahasaya, Gyanatari Teshwar Giri, Paramahansa Yogananda, and many prophets of all ages and line. And all knowledge, power, peace, bliss, everything exists within each and every perception, what you feel within head to toes. Try to follow this practice with 100% guarantee, you will be healed. All problems will disappear. हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अभ्यास करिए, धर्म का अर्थ जुड़ना, आप जुड़िए, अपने से जुड़ना सीखिए, बाकी से नहीं जुड़ पाएंगे। पैर के उंगली सिर तक अपने से जुड़िए और जुड़ते जाइए। जुड़ने में प्रत्येक अनुभूति जो होती है, उसी अनुभूति में सब कोई है। महाअवतार बाबा को हिमालय में नहीं पाएंगे आप, उसी अनुभूति में है। जब परमहंस योगानंद उसी अनुभूति महाअवतार बाबा को देखे तो कह रहे थे अमेरिका जाएंगे तभी हम, जब महाअवतार बाबा जी स्वयं बताए उन्होंने हमको चुना है। उसके पहले उनकी मुलाकात नहीं हुई थी।
तो महातार बाबा तो थे परमहंस योगानंद के अंदर में ही। जब ध्यान करते करते कई घंटे बीत गए, बाड़ी लगा के अब सिर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उतनी गहन अनुभूति जब स्वीकार किया तो बाबा जी से अनुभूति से दरवाजा प्रकट हो गए, दरवाजा भी खटखटाए गलपा रोड पर और बताया कि जाइए, पश्चिम लोग इंतजार कर रहे हैं, आपकी रक्षा होगी। तो आप इस सारी अनुभूति अगर बाबा जी हैं तो भूल क्यों जाते हैं? योगातार लहरी महर्षि हैं, उसी में बुद्धा हैं, जीसस क्राइस्ट है, सब कोई उसी में है। उसी में ज्ञान है जिसको पाने पर आपको लगेगा कि आपका कभी जन्म हुआ था, मरे थे आप, और जो रोटी दाल का चक्कर चल रहा है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे हवा अपने आप मिल रही है, आप सांस ले रहे हैं, ऐसे जितनी रोटी दाल की आवश्यकता आपके पास खुद ही चल के आएंगे वो। क्या आपको विश्वास नहीं कि हम कितने लोगों की सेवा करने में सक्षम हैं? जितने डोनेशन मिलते इकट्ठा करें, उससे बिजली का बिल भी नहीं जाता होगा। पूरी दुनिया में कहां कहां से लोग कितने प्रेम से क्या क्या सब भेजते होंगे। हमने आपसे बताया था कि यूट्यूब से पैसे नहीं आता है, पता नहीं कैसे लोगों को लाखों मिलता है। यूट्यूब के व्यूअर बहुत है, जितना यूट्यूब बना है सबके कितने व्यूअर हैं जब कैलकुलेट किया गया तो लगभग 2 करोड़ के हैं। चलो उसकी चिंता नहीं कि यूट्यूब से आता है कि नहीं, बस हमें तो अपने में एकाग्रता बढ़ा करके सारी अनुभूतियों को इस तरह से स्वीकार करना है कि एक अनुभूति में सब कुछ है। बस आज से आप अभ्यास करके देखिए, फिर शाम को मिलेंगे तो धर्म तो समझ में आ गया। जो जोड़े आप अपने से जुड़िए, बाकी सारी व्याख्या धा क्या है, आधारा क्या है, माँ क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग, उसका फिर आपको बताएंगे, अभी जाने की आवश्यकता नहीं। दिस इज फॉर टुडे। लेट अस प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग। कनेक्ट योरसेल्फ विद द हेड टू टो, चेंजेस विद इन यू फील। 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अपने से जुड़ गए हैं, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। Let us bow down to our devotion we have in yoga meditation। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।